the daughters-in-law, says that, all right, I may be your sexual prey, you are the predator, but give me 6 months. तो ये फैब्रिक जो है about buying time and using your intellect, this is part of a Gothic scenario where ultimately the monster who is claiming woman after woman, ultimately कहानी का जो resolution है वो ये है कि the Kumarin who then has a son by the monster, she aligns herself and there is a solution, there is a resolution, ultimately he is killed off. So this is one thing. So इसमें जो theme है that Gothic desires are always unsatiated, an unsatiated being, and therefore he is a suspended being who has misconstrued that life is about giving grief and he enjoys their grief. तो ये redressal जो है हो जाता है, the redressal has to happen, and ultimately there is a courageous son who goes and sees to it that his life is put an end to. But very beautifully the whole universe of this Gothic looks at the ecology of trees, खेजे का पेड़ है, banyan tree है, the swings, the neem trees, बहुत सारी चीजें हैं, and it's very beautifully. So this is one sample of the Asman Jogi. The second one, of course, is Duvida, right? Now in Duvida बहुत discussion हो चुका है इस पे, but again there are ethical dilemmas for the ghost. कि क्या ये जो मैं चाह रहा हूँ ये ठीक है क्या? After all, she is a bride. After all, she is married to somebody else. But then desire again overcomes. And within this story, this part really struck me, the use of darkness as a metaphor. क्योंकि कहानी में जो है एक बहुत जबरदस्त transition आता है, where you have, the double or the ghost, right? Who, first of all, he has held on. He says, I will not succumb, I will not harm her. But then he falls in love, and at that point of time, Vijay Dandekar says that he fainted. He fainted, and there is so much darkness, and after that, it's as if there is light, but the light takes him towards this thing. एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस कहानी दुविधा में जो में है, which I found particularly striking was कि कई फिगर्स होते हैं, जैसे एक शेपर्ड फिगर है, गडरिया है, वो कहाँ से आता है? How does he suddenly come? The whole family wants a resolution, who is the true husband and who is not the true husband, and they actually want to go to the king. मगर क्योंकि community narrative है, तो सबका suggestion ये है कि let us find a solution here. The shepherd comes, and there is a test, and the booth, the ghost, the benevolent booth, then goes through the test. It is clear. But this story, the resolution, is tragic and sad. Kyunki it begins with the story of the girl child whose parents don't care for her. They are not bothered about what kind of life she is going to face after she is married off. So there is a resolution, but again, something that one can note. How Vijay Dandekar, we spoke about social critique, but he was building in so many forms of insight and very critical penetration into the society of his time, patriarchal society of his time. The third story, which I myself was taken aback by, is called Double Life. और आज काफ़ी बातें हुई हैं about cross dressing, etc. Right? Rima also spoke about it. I think Rashmi ma'am also spoke about it. But in this story, I mean, there are two states, and they decide that their children are going to be betrothed. From the very womb, this decision is taken. Now, both of them turn out to be girls, but yet the father of the girl will not, heed to his wife's advice, the mother's advice, that this is not something you can carry forward. So it's a very, very painful tale, told very tragically. But what Vijay Dandekar does is to, move it in the direction of female companionship, female love, and so many other dimensions, just to hit out at
this citadel of patriarchy, which does not realize that brutality and cruelty, they simply cannot be condoned and accepted. So इस कहानी में भी जो है, there is a ghost, right? I think he's called chief of ghosts. राजस्थानी में सरदार है, ठीक है. Chief of ghosts. So the social space is very confining, and it is not a liberating space for girls or for women. But there is another palace called Ek Thambya Mahal, created out there, and that is a kind of a sanctuary, a refuge. So the ghosts also take up this function, and I would think it's both a protective function and a very insightful, compassionate in every way. So these two girls, the girl constantly dressed as a boy who's married off, and his bride or her bride, well, they take refuge there. They're given sanctuary. Gradually there is a bit of movement, and it looks as if the whole idea of heterosexuality is going to be established as a social norm. But no, Vijayananda breaks that mold also. He moves it out of that mold. And then he, as they realize, right, Tija and Bija, so as Tija realizes, she says, even if I get married, once again it's the same situation. I will be yelled at, shouted at. So I cannot once again operate within this frame of heterosexual marriage. So I think it's a very, very courageous story to have written in its times. And so I just picked out these three, ghost stories which have distinct variants, just to see what a marvelous teller of folk tales, because Vijayananda collected them, listened to them, worked so hard. And there are many translators. We are speaking about how does the translation work in English. So they speak about the fact that there is something intangible. This is the word that is used. I will give you the name of the critic also. So how can we translate the intangible? How can we garner and keep safe this intangible dimension? Because it works on so many levels, right? I think there is much more that I can say, but I will stop it. It struck me the use of darkness as a metaphor. क्योंकि कहानी में जो है एक बहुत जबरदस्त transition आता है, where you have, the double or the ghost, right? Who, first of all, he has held on. He says, I will not succumb, I will not harm her. But then he falls in love, and at that point of time, Vijayananda says that he fainted. He fainted, and there is so much darkness, and after that, it's as if there is light, but the light takes him towards this thing. एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस कहानी दुविधा में है, which I found particularly striking was कि कई फिगर्स होते हैं, जैसे एक शेपर्ड फिगर है, गडरिया है, वो कहाँ से आता है? How does he suddenly come? The whole family wants a resolution. Who is the true husband and who is not the true husband? And they actually want to go to the king. मगर क्योंकि एक community narrative है, तो सबका suggestion ये है कि let us find a solution here. The shepherd comes, and there is a test, and the booth, the ghost, the benevolent booth, then goes through the test. It is clear. But this story, the resolution, is tragic and sad. Kyunki it begins with the story of the girl child whose parents don't care for her. They are not bothered about what kind of life she is going to face after she is married off. So there is a resolution, but again, something that one can note. How Vijayananda, we spoke about social critique, but he was building in so many forms of insight and very critical penetration into the society of his time, patriarchal society of his time. The third story, which I myself was taken aback by, is called Double Life. और आज काफ़ी बातें हुई हैं about cross dressing, etc. Right? Rima also spoke about it. I think Rashmi ma'am also spoke about it. But in this story, I mean, there are two states, and they decide that their children are going to be betrothed.
From the very womb, this decision is taken. Now, both of them turn out to be girls. But yet, the father of the girl will not, heed to his wife's advice, the mother's advice. But this is not something you can carry forward. So it's a very, very painful tale, told very tragically. But what Vijay Dandita does is to, move it in the direction of female companionship, female love, and so many other dimensions, just to hit out at, the citadel of patriarchy, which does not realize that brutality and cruelty, they simply cannot be condoned and accepted. So इस कहानी में भी जो है, there is a ghost, right? I think he's called chief of ghosts. राजस्थानी में इसको सरदार है, ठीक है, chief of ghosts. So the social space is very confining, and it is not a liberating space for girls or for women. But there is another palace called Ek Thambiya Mahal, created out there, and that is a kind of a sanctuary, a refuge. So the ghosts also take up this function, and I would think it's both a protective function and a very insightful, compassionate in every way. So these two girls, the girl constantly dressed as a boy who's married off, and his bride or her bride, well, they take refuge there. They're given sanctuary. Gradually there is a bit of movement, and it looks as if the whole idea of heterosexuality is going to be established as a social norm. But no, Vijay Dandita breaks that mold also. He moves it out of that mold. And then he, as they realize, right, Tija and Bija, so as Tija realizes, she says, even if I get married, once again it's the same situation. I will be yelled at, shouted at. So I cannot once again operate within this frame of heterosexual marriage. So I think it's a very, very courageous story to have written in its times. And so I just picked out these three, ghost stories which have distinct variants, just to see what a marvelous teller of folk tales, because Vijay Dandita collected them, listened to them, worked so hard. And there are many translators. We are speaking about how does the translation work in English. So they speak about the fact that there is something intangible. This is the word that is used. I will give you the name of the critic also. So how can we translate the intangible? How can we garner and keep safe this intangible dimension? Because it works on so many levels, right? I think there is much more that I can say, but I will stop it. और इन्होंने जो एनालिसिस किया तीन कहानियों का, और उससे इन्होंने ये कहा कि उस रिडल को, उसके अर्थ को कैसे पकड़ा जाए। अगर मुझे समय मिला तो मैं इस पर कुछ थोड़ी सी देर के लिए चर्चा करूँगा। लेकिन उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, और जो आज का जो विषय है कि फोकलोर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन, फोकलोर के ट्रांसलेशन में उसका क्या स्वरूप रहता है, क्या वो उतनी की उतनी ताकत जो मूल में है प्रहार करने की, क्या वो ट्रांसलेशन में आ सकती है। फिर इन्होंने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और उन्होंने कहा हाउ इंटेंजिबल को आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है फोकलोर को अनुवाद करते वक्त। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात निकल करके आई, और मुझे आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैडम शर्मा ने ये जो इस सारे क्लिष्ट विषय को समझने की चेष्टा करने में हम लोगों की आवड़ दिखाई है, तो वो काबिल तारीफ। जो हमने पहले सत्र से ही विकास स्वरूप साहब से ही ये ताका चला है, और अब मैं उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कहूँगा। और अब मैं प्रोफेसर माथुर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात कहें। अब तक दोनों
वक्ताओं ने, विद्वान वक्ताओं ने, उनके पास बहुत कुछ कहने का था, लेकिन दोनों ने 15 मिनट की अपनी समय सीमा का बहुत ध्यान रखा। सर समझ गए और कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में ही अपना प्रीति मैम करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, अब मेरा जो पेपर है वो सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं कुछ तो वैसा ही बोलूँगी जैसे डॉक्टर विकास स्वरूप बोले थे, वो सब बोल गए जो मुझे बोलना था। It is very much similar, but then there is a dissimilarity also. I will talk about the comparative framework of Rajasthani literature, especially in Gothic reference. I'll compare it to the African literature, which is my specialization. So the title of my talk is Spectral Deserts and Haunted Lineages, Gothic Elements in African and Rajasthani Literature. The Gothic, a literary mode that emerged in 18th century Europe with Horace Walpole's The Castle of Otranto, is often associated with haunted castles, persecuted heroines, and supernatural apparitions lurking in liminal spaces. Yet, as scholars have increasingly recognized, the Gothic is not a static European invention, but a trans-cultural mode that travels, transforms, and localizes itself in diverse cultural landscapes. It thrives wherever societies grapple with fear, with memory, trauma, and the uncanny. This paper explores the African and the Rajasthani literary traditions through a Gothic lens, arguing that both literatures produce distinctive forms of the Gothic rooted in spectral deserts and haunted lineages. In African texts such as Amos Tutola's The Palm Wine Drinkard, Ben Okri's The Famished Road, and Wallace Oinka's Death and the King's Horseman, the supernatural coexists with daily life. With daily life blending spirits, ancestors, and cursed legacies. In Rajasthani folklore and modern retellings such as Vijay Damdeta's Duvidha, alongside legends of cursed forts like Bhangar and abandoned villages like Kuldhara, one finds churels, female revenants, haunted lineages, and spectral landscapes of desert emptiness. Both traditions articulate Gothic anxieties through oral storytelling, haunted spaces, ritual depth, and the uncanny presence of the ancestors. By juxtaposing African and Rajasthani texts, this paper demonstrates how the Gothic mode transcends geography, producing a comparative framework of spectrality and haunting. It highlights three major dimensions. First, spectral deserts as Gothic landscapes, haunted lineages and ancestral curses as Gothic families and legacies, and third, ghostly femininity and ritual death as Gothic embodiments of gendering haunting. Now, the African writers have often employed Gothic elements to engage with colonial trauma, communal memory, and metaphysical anxieties. वो supernatural word मैंने यूज़ कर रही, but metaphysical anxieties यही मैं पढ़ाती रहती हूँ बच्चों को और वही समझाती हूँ जो हम सोच ही नहीं सकते. Unlike European Gothic, where haunted castles or abbeys signify aristocratic decline, African Gothic often manifests in spiritual landscapes and ancestral pressures. Amos Tutola's The Palm Wine Drinkard epitomizes the African Gothic. The protagonist journeys through ghost towns, haunted rivers, and uncanny encounters with spirits and ghouls. Ghouls, वही जो सर बोल रहे थे, Diane खा जाती है. Social fears of female sexuality, widowhood, and transgression, transforming the desert landscape into a haunted Gothic terrain. Haunted forts and villages. The legend of Bhangar Fort, cursed by a tantric after being spurned by a princess, resembles
सब कह रहे थे कि वो एक रात में ही बदल गई, लेकिन दरअसल कोई तांत्रिक ने कोई श्राप दे दिया था जिस कारण से वो एक ही रात में resembles Gothic ruins such as crumbling castles in Europe. Similarly, Kuldhara, a village abandoned due to a curse, evokes Gothic emptiness where landscape itself becomes spectral. Now, ballads of Pabuji and Dev Narayan incorporate curses, ghostly interventions, and ancestral hauntings, linking heroism with supernatural trials. These epics transform communal memory into Gothic performance, where the dead and the living coexist on stage through oral recitation. Thus, Rajasthani Gothic thrives in desert emptiness, haunted spaces, and spectral women, offering a regional form of the global Gothic. While African and Rajasthani literatures emerge from distinct cultural histories, they converge through Gothic moods. Both traditions articulate the haunting of the present by the past, as Sir Vikas Swarup said, when he referred to T.S. Eliot in this reference, whether through ancestors, ghosts, or curses. Now, spectral deserts as Gothic landscapes. In Okeris, the famished road, the ruined city, and the spectral streets evoke Gothic ruins. In Rajasthani legends of Bangar and Kuldhara, the desert ruins themselves are haunted, producing emptiness as Gothic terror. The ruined Gothic castle in Europe becomes the ruined desert village or the fort in Rajasthan and the haunted colonial city in Africa. In Tuitola's ancestral curses dictate the drunkard's journey, trapping him in a cycle of spectral trials. In Rajasthani folklore, royal lineages often collapse under curses. Example, the Tantric's curse on Bhangar. Both traditions dramatize the decay of families and communities under spectral inheritance, echoing Poe's The Fall of the House of Usher, and the ghostly femininity and ritual death. In Buchi Amicheta's The Bride Price, the ghost of the dead fiancé haunts the heroine, aligning female destiny with spectral punishment. In Detha's Duvidha, the ghostly lover destabilizes marriage, echoing Gothic anxieties about female desire and spectral unions. In Soinka's Death and the King's Horseman, ritual death produces Gothic dread, mirroring Rajasthani Sati and Jor legends where women collectively embrace spectral sacrifice. Gendered bodies are Gothicized, becoming sites of haunting, ritual, and uncanny desires. So when pairing texts illuminates how Gothic operates across traditions, Tuitola's Palm White Rincard and Detha's Duvidha, the both texts use ghosts as central narrative agents. Tuitola's spectral beings guide a grotesque journey. Detha's ghost destabilizes domestic space. Both explore the Gothic uncanny when the familiar becomes strange. Okeris, the famished road, and Bhangar and Kuldhara legends. Okeri, spectral city, resonates with Rajasthan's haunted ruins. Both evoke spectral landscapes where history itself haunts the present. And Soinka's Death and the King's Horseman, Rajasthani Sati and Johar legends, ritualized death produces Gothic unease. In both, death is not an end but a spectral obligation that, if disrupted, unleashes terror. So, while concluding, I say the Gothic, often thought of as a European mode of haunted castles and damsels in distress, finds profound resonance in African and Rajasthani literature. Both traditions demonstrate how local landscapes, African wilderness and Rajasthani deserts, become spectral terrains, and how communal memory manifests as haunted lineages and ancestral curses. Ghostly femininity, ritual death, and cursed spaces show the universality of Gothic anxieties about life, death, desire, and memory. By reading African and Rajasthani texts comparatively, we see that Gothic is not bound to Europe, but it is a global language of haunting, adaptable to deserts, villages, ruins, and ancestral voices. The spectral deserts of Rajasthan and the haunted lineages of Africa remind us that the Gothic is less about
specific architecture and more about haunting presence of history itself. Thank you. If anybody has any questions for the chair and the speakers. ने तीनों ने बहुत ही गवेषणा पूर्वक अपनी बात रखी और विचार भी सारे के सारे, और इन्होंने जो सवाल उठाए वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक सूचना से चमत्कृत करना चाहता हूँ, और वो सूचना ये है कि हम सवेरे से जिस व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हैं, विजयदान देथा, इस 1 सितंबर से उनका जन्म शती वर्ष शुरू हुआ है, और इसे सहयोग देखिए कि हम उन्हें पहली स्मरणांजलि दे रहे हैं। ये श्रद्धांजलि जो है वो स्मरणांजलि, उन्हीं को याद कर रहे हैं, उनकी राइटिंग को याद कर रहे हैं, उसके अलग अलग विषयों को याद कर रहे हैं, उनके अलग अलग कोणों को विश्वास उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये संयोग भी कानोडिया कॉलेज को ये इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने ऐसे वक्त में और ऐसे मौजूद पर माला श्रीलाल और इन लोगों ने मिलकर ये आयोजन किया। प्रोफेसर राजवीर सिंह जी ने, क्योंकि वो इतिहास के विद्यार्थी हैं और उन्होंने कहा भी है कि, लेकिन उन्होंने जो बातें कही या उनकी जो उदाहरण उन्होंने दिए, चाहे गिंदोली के हों या और भी ज्ञान, उसके लिए 2 बातें समझनी पड़ेगी। एक बात तो यह है कि राजस्थानी लिटरेचर, राजस्थानी साहित्य और इतिहास, ये जैसे दस्ताने में हाथ होता ना, हैंड इन ग्लोव्स जो कहावत है, ये इतिहास और लोक, इतिहास और साहित्य, इनको हम राजस्थान में राजस्थानी साहित्य का जब तकमीना कर रहे होते हैं तब हम इन्हें जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, और उसका रीज़न है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि राजस्थानी साहित्य का अध्ययन करने के लिए, उसे समझने के लिए राजस्थान के इतिहास का ज्ञान होना अब बहुत लाजमी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कई रीडर छोड़ के कई कहावतों का अर्थ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे अरब दोहे बता सकता हूँ मैं आपको, प्रश्नोत्तरी दोहे बता सकता हूँ, कैसे ये रीडर्स जो आती हैं ये बता सकता हूँ, लेकिन वो इतिहास से के साथ इतनी गुम्फित है कि हम अगर उसमें से इतिहास निकाल कर विशुद्ध रूप से साहित्य की चर्चा करने लगे तो अव्वल तो ये संभव ही नहीं होगा, और दूसरी बात यदि संभव होगा भी तो न तो वो साहित्य पूरा होगा और न वो इतिहास पूरा होगा। तो इसलिए एक बात तो ये कि जो उनका फिक्र भी है और वो उनकी जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया को समझने के लिए मेरी ये बात आप समझें। दूसरी बात, उन्होंने जो एक जिज्ञासा की कि ये कथा स्कॉटलैंड में है, ये कथा गोल्डन बो में है, ये कथा वहाँ है। तो मित्रों, 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगती है, एक तो जो चुटकुले होते हैं ये, और दूसरा फोकलोर, लोक कथा, ये कोई बाउंड्रीज नहीं मानते, और ये ऐसा कोई जगह हो ही नहीं सकती कि जहाँ पर इस मेरे क्षेत्र में प्रचलित, राजस्थान में प्रचलित कोई भी लोक कथा वो आपको बाहर न मिले, या बाहर की ऐसी लोक कथा कि जो आपको लगे कि ये तो बहुत टिपिकल है और ये यूरोप में ही हो सकती है, हमारे यहाँ पर भी मिल जाती है। और सवेरे मैंने अपने व्याख्यान में कहा भी, जब मैं ड्रैकुला से 5वें राजकुमार की बात में को कंपेयर कर रहा था, और मैंने ये और बताया कि विजयदान देथा कितने क्रिएटिव हैं, ये सब कुछ रिटोल्ड कर रहे हैं वो कहानी को फिर भी, लेकिन वो इतने होशियार आदमी हैं कि वो कुछ कर देते हैं। जैसे मैंने संकेत भी दिया था कि वो भूत है दुविधा का, वो क्या करते हैं, नॉन रियल को रियल में कन्वर्ट कर देते हैं और रियल को नॉन रियल में कन्वर्ट करते हैं। जो सत्य है उसे असत्य करते हैं, सत्य उसका पति है,
लेकिन जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो असत्य है। और जो असत्य है भूत, वो जब अंत में जब आप जाएंगे सारी सिंपैथी भूत के साथ हो जाएगी। क्योंकि यदि आप प्रेम, उसको प्रेम कथा मान करके या प्रेम तत्व का उद्घोष जानना चाहते हैं तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वो जो भूत है ही इज मोर ह्यूमन, वो अपने भूत से ज्यादा वो मानव है। और यही वो अपने इनकी कहानियों में कहना चाहते हैं। एक संयोग और बना विजयदान देथा का कि वो संयोग ये हुआ कि मेरे इस राजस्थान की धरती पर एक सौभाग्य और खिला, और वो कला मर्मज्ञ पद्म भूषण कोमल कोठारी का जन्म ना। अगर कोमल कोठारी नहीं होते तो बाता की फुलवाड़ी के ये जो 14 वॉल्यूम हैं ये इस स्वरूप में नहीं होते। और यदि उस दूसरी तरह से कहूँ कि यदि कोमल कोठारी नहीं होते तो इन सारी जो 14 भागों का जो लोक कथाएं हैं उनको इंटरप्रिटेशन के लेवल पर समझना दुहर हो जाता। कि वो एक ऐसा ऋषि पुरुष था कि लोक का जो जितना मतलब डीप बहुत ही जो ज्ञान होना चाहिए किसी को, वो ज्ञान जितना उस प्रतिभा में था। और सौभाग्य देखिए कि दोनों मित्र रहे, दोनों ने एक इंस्टीट्यूशन बनाई, दोनों ने लोक में काम करना चालू किया, एक ने लोक संगीत में, एक ने लोक कथा में, और दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान सितारे। तो इसलिए जब एक सवाल ये आया कि इन कथाओं को कैसे व्याख्यायित किया जाए, कैसे समझें, कैसे कम्युनिकेट हों, तो कम्युनिकेट में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। संप्रेषण तो इतना आसान है कि अनपढ़ से अनपढ़ सुना रहा है और अनपढ़ से अनपढ़ सुन रहा है, तो संप्रेषण का झंझट नहीं है। ये झंझट तो हम लोगों, पढ़े लिखे लोगों का है कि उन्हें वो समझ में नहीं आता कि वो ये क्या क्या कर रहे हैं। फिर इनको समझने के लिए जैसे प्रोफेसर सुधा जी ने जो अपने 3 उदाहरण दिए, मैं खुद भी इन तीनों उदाहरणों को मैं भी देखिए लगभग मैं ये तो नहीं कहता अपनी तारीफ में न समझे, मेरी कम अक्ली थी कि मैंने विजयदान देथा को बार बार पढ़ा है ताकि मुझे समझ में आ जाए। और अभी भी ये जब मैं 5वां राजकुमार पढ़ रहा था तो मुझे एक इल्म हुआ कि मैं 33 वर्ष तक इनके साथ रहा, लेकिन वो उस समय भी मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ आने से पहले उसको वापस पढ़ रहा था तब मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये कहानी विजयदान देथा लिख सकते हैं। आपको ऐसा दैत, मेरी चुनौती है, 6 महीने का समय देता हूँ, विश्व साहित्य में सारे गौथिक साहित्य को फिरोड़ लेना। अगर 5वां राजकुमार जैसा दैत अगर आप कहीं से ढूंढ करके ले आए और उसका जो खात्मा है वो जान से नहीं मारते हैं। वैसे तो दैत को नायक जो है वो तो 1 मिनट में मार देता है, लेकिन वो नहीं मारते, और नहीं मार करके उसका दैतपन मार देते हैं। उसका जो जिसके कारण से वो दैत है उसका मेटामॉर्फोसिस कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही प्रोफेसर सुधा जी ने कि ये दिक्कत आती है। इसको क्या, जब समझने में इतनी दिक्कत आती है मित्रों, तो आप कल्पना करिए उसके अनुवाद में कितनी दिक्कतें आती होंगी। क्योंकि 2 कल्चर हैं, 2 दुनिया है। अंग्रेजी की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है, राजस्थानी की दुनिया, राजस्थानी की कल्चर बिल्कुल अपनी कल्चर है। मोटिव यहाँ से वहाँ जा सकता है, कथा जो है वो कई अरसे तक कंठों पर रह सकती है। और इसका एक उदाहरण दूंगा आपको। ए.के. रामानुजम ने अपनी प्रसिद्ध किताब में एक जगह लिखा कि ये 6वीं शताब्दी में तमिल के अंदर उनके पास रिटन फॉर्म में ये आपने कथा सुनी होगी, वो मगरमच्छ और बंदर वाली, कि वो कलेजा कितना मीठा होगा, वो ये कथा 6वीं शताब्दी में लिखित स्वरूप में मिलती है। और ये जो सारी राजस्थानी की कहिए कि जो ऐतिहासिक कथाएं हैं ये भी मेरे यहाँ पर 17वीं 18वीं सदी के बाद में मिलना शुरू हो जाता है, रिटन फॉर्म में मिलती है। तो सवाल ये है कि राजस्थान, मैंने जैसा सवेरे अपनी बात शुरू करते हुए कहा था कि ऐसा खजाना है, और राजस्थान का लोक जो है वो इतना समृद्ध है कि वो शास्त्रीय साहित्य तो उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। और ये जो बातें हैं लोक में जो कहने की स्थिति होती है,
इतना जीवंत संसार आपने किसी साहित्य में नहीं देखा होगा कि एक मछली बोल रही है और पहाड़ सुन रहा है, एक पेड़ बोल रहा है और उस पर लटकी हुई एक लाश है वो उसको समझ रही है, बेताल के कंधे पर जो लटका हुआ है वो क्या है वो बोल रहा है और वो सवाल कहता पहले मौन रख कर करके कि मेरी इस समस्या का जवाब दो, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। ये ऐसी दुनिया है कि जिसमें अगर आप यात्रा करेंगे तभी आप उसका आनंद को जान पाएंगे। और मुझे लगता है कि एक शब्द है हमारे यहाँ पर आनंद, हिंदी में, उसकी एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसे हम कहते हैं अलौकिक आनंद। तो इस अलौकिक आनंद की प्राप्ति लोक के बिना आपको नहीं हो सकती, न आपकी वो तृष्णा खत्म हो सकती है, न संसार का, मनुष्यता का, न संसार को छोड़िए, मनुष्यता का ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जो लोक कथा उसे सॉल्व नहीं करती। जरूरत इस बात की है कि जैसे सवेरे विकास स्वरूप जी ने भी कहा था, विकास स्वरूप साहब ने, अभी भी मैम ने भी कहा कि ये जो फोकलोर है या ये जो चीज़ें हैं इसे अनुवाद में कैसे ले जाएं, और अनुवाद में यदि ये चली जाए तो मतलब राजस्थान समझ में आएगा कि राजस्थान, सारा संसार जान जाएगा उस दिन के राजस्थान क्या है, राजस्थानी का साहित्य क्या है, जिसकी कि आज कोई नोटिस नहीं लेता। भाषा ही मानने को तैयार नहीं है तो साहित्य को मानना तो बहुत आगे की बात। तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से मोटिव यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं, जैसे चुटकुले इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, इसी तरह उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन लोक कथा के साथ में देश और काल, टाइम और स्पेस, दोनों में कोई बाउंड्री नहीं होती। लोक कथा हमेशा कालातीत होती है, जिसका मैंने उदाहरण दिया कि 6वीं सदी से जो कहानी है वो आज भी हमने सुनी और हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। ठीक इसी तरह से देश की भी मर्यादा को ये लोक कथा नहीं मानती, जिसकी और अफ्रीका के साथ में कंपैरिजन करते हुए प्रोफेसर माथुर ने इंगित किया कि ये और यहाँ पर कितनी साम्यता है। और उस साम्यता के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और निवेदन कर दूं कि अफ्रीकन साहित्य भी इस साहित्य को, इस तरह के साहित्य को कोई गोथियक साहित्य नहीं कहती, वो किसी परिभाषा में नहीं बांधती है और राजस्थानी भी नहीं बांधती है। जो सवेरे मैंने एक सवाल उठाया था कि मैं कैसे समझूं, राजस्थानी में ये परंपरा तो है लेकिन ये गोथियक परंपरा नहीं। उसके बाद कई एक सवाल आए, मैंने भी उदाहरण से आपको समझाया 5000 साल पहले से, क्योंकि 18वीं सदी में कोई यूरोप की धनियाप नहीं है। मेरे तो याद है रामायण में मैंने बता दिया नहीं कि रावण के 10 सिर हैं, तो अब आप ये गोथियक से इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है। तो इसलिए ये इनकी नेचुरल प्रवाह है, जिस तरह से कुदरत नेचुरली चलती है उसी तरह से लोक कथा भी, फोकलोर भी, उसमें कोई आर्टिफिशियल वो नहीं होता, कैटलिस्ट नहीं होता कि वो उसको प्रमोट कर दे और ऐसा कर दे। जब वो उसी कुदरतन प्राकृतिक ढंग से बैठी है और इसीलिए वो पूरे की पूरी प्राकृतिक सत्य को, प्राकृतिक यथार्थ को, जिसको कि हम असल में यथार्थ कहते हैं, उसको पकड़ने की ताकत, बावजूद इसके कि मैं लेखक हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, सब कुछ तरह के लेखन में मैं घुसता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस यथार्थ को पकड़ना हो तो या चाहे उसका कोई नाम दे दे, मैजिकल रियलिज्म या और कुछ, लेकिन अगर उसको पकड़ना है यथार्थ को तो पूरे फॉर्म में, यथार्थ का हिस्सा तो आप पा सकते हैं दूसरा साहित्य पढ़कर, लेकिन पूरे यथार्थ को कंप्लीटली अगर आपको एब्जॉर्ब करना है या उसको निकालना है तो लोक कथा के साथ, लोक साहित्य या लोक वाङ्मय या लोक आख्यान, इनके बिना कोई दूसरा टोटका है ही नहीं श्रीमान। क्योंकि ये इतना नेचुरल तरीका है, जिस कुदरती ढंग से ये कहानियाँ बनती हैं उतनी ही कुदरती ढंग से ये अपना अर्थ आपको व्याख्यायित करती हैं, और उसी कारण से ये कालजयी होती हैं और ये टाइम के भी पार जाती हैं। बातें बहुत है, इसके अलावा भी मैं आपसे ये तो विषय ही ऐसा है कि जिस पर ज़्यादा कोई चर्चाएं हुई नहीं। और मेरा राजस्थान का दुर्भाग्य यह है कि जो राजस्थानी जानता है
उसे अंग्रेजी नहीं आती, और जिसे अंग्रेजी आती है उसे मेरी राजस्थानी नहीं आती। ये हम लोगों को, और कहाँ कहाँ से ये लोक कथा के जो बीज हैं, और जब हम पढ़ते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा। मैं सुधा जी ने जो अंत में बीजा तीजा जो दोड़ी जून नाम की विजयदान देता की कहानी है जिसका हवाला किया, मैं एक बार महाभारत को पढ़ रहा था। पिछले दिनों मैंने महाभारत पर बहुत काम किया, तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे अम्बा, अम्बालिका और वो जो 3 बहनें हैं उनका आपको किस्सा पता लगा होगा। उसमें इस कथा के बीच छुपे हुए ये जो स्त्री है जिसको वो सेठ जो है वो अपनी कंजूसी के कारण कहता कि नहीं मेरे से लड़का पैदा हुआ, क्योंकि लड़की होगी तो खर्च करना पड़ेगा, शादी करेंगे दहेज देना पड़ेगा, इसलिए वो सेठ कहता है नहीं नहीं मेरे तो यही है। उसको उसी तरह पालता है, उसी तरह रखता है, वही सब कुछ। लेकिन विजयदान देता उसमें से एक नया तत्व कैसे इमर्ज करते हैं, उसमें से बरामद करते हैं, ये देखने की चीज है। असल में वो इस कथा को, ये लेस्बियन स्टोरी हो सकती थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन वो उसको लेस्बियन कहानी से बिल्कुल बचा ले जाते हैं और हैमर की तरह, हथौड़े की तरह पितृसत्तात्मक अवधारणा के ऊपर प्रहार करते हैं, उसे चूर चूर कर देते हैं। क्योंकि मैरिज इंस्टीट्यूशन पितृसत्तात्मक समाज का या पितृसत्तात्मक इसका सत्ता का उपकरण है। मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं हो तो स्त्री 2म दर्जे पर कैसे जा सकती? तो ये जो उपकरण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्त्री को कमजोर बनाने के लिए, तो उस पर चोट करते हैं और एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ विवाह करवा देते हैं और अंत में ये सिद्ध कर देते हैं कि वो उनकी ये जो दंपत्ति है ये कोई हेट्रो या कोई बहुत गलत दंपत्ति नहीं है, बल्कि वो तो ये सिद्ध कर देते हैं कि ये असल में एसेंशियल, ये जो ट्रू फ्रेंडशिप हो सकती है वो इसी फॉर्म में हो सकती है। हालांकि ये यहाँ पर वो अति कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहानी कह रहे हैं, उन्हें कोई ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से दुविधा में भी पितृसत्तात्मक समाज पर यह प्रहार है, समझने की दरकार है कि ये कथा में कहना क्या चाहते हैं। एक शादीशुदा है, दुल्हन को लेके आ रहा है और एक खेजड़ी के नीचे रह रहा, ऊपर भूत है, वो उस पर रीझ रहा है और कहानी कुछ की कुछ हो गई। तो इसका मानी क्या है? अल्टीमेटली जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इट इज नल एंड वॉइड, ये कोई मतलब ही नहीं रखती है उस दुविधा की नायिका के मन में। और यही बात वो सामाजिक औचित्य के रूप में, जो कि आज का विषय है हमारा, तो वो सिद्ध करते हैं कि ये जो सामाजिक औचित्य है ये मैरिज इंस्टीट्यूशन, ये सत्ता और पूंजी का उपकरण। इस तरह से अगर हम इन कथाओं को और इस साहित्य को समझने की चेष्टा करेंगे तभी हमारे साथ, इतना आसान नहीं है पकड़ में आना। आसमान जोगी का, उस कुमारी का जो भ्रम है, वो भ्रम जो है उसका टूटना बहुत बहुत मुश्किल है। और क्योंकि लोक साहित्य में या लोक कथा में जो बात जितनी सरल होती है उसे समझना उतना ही कठिन और उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमारा मस्तिष्क उसके अंदर और घुसेड़ देते हैं जिसकी की जरूरत नहीं है। कहानी और उसके बीच में, कान के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये जो गौथिक साहित्य जिस विषय को लेकर के हमने आज ये संपोजन किया, उसकी सार्थकता इसी में है कि हम, ठीक है, ये बात मैंने भी अपनी बात शुरू की जब ये कहा कि 18वीं सदी में ये सब कुछ सिलसिला शुरू हुआ और ये जो छोगा है ये अंग्रेजी राइटिंग के साफे में ये तुर्रा उनको लगना था, इसलिए हम उसे गौथिक, इसीलिए मैं इतना कह रहा हूँ नहीं गौथिक। मैं कोर्स देखा इसका अपने फादर कामिल बुल के, वो लिखता है गौथिक की जगह आगे लिखता है गाथिक साहित्य, गौथिक का गाथिक कर दिया। तो अब इसको समझना भी हमारे लिए नहीं है, और इसीलिए मैंने अपनी कम बुद्धि से भी सवेरे आपसे ये कहा कि ये अलौकिक कहानियां हैं हर अर्थों में। अलौकिक का मतलब उस दो लोगों के बीच की दूरी नहीं है, ये कई अर्थों में अलौकिक हैं, ये नायाब हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से प्राकृतिक हैं और उसमें कोई भेड़ नहीं है।
कोई मनुष्य की बुद्धि का भेद नहीं है। और ये सब कुछ जो प्रयोजन किया गया है, इनकी रचनाओं का प्रयोजन, जैसा कि मैंने सवेरे कहा, मनुष्यता को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने का अगर कोई काम साहित्य की दृष्टि से हुआ है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हुआ है, और आगे साहित्य में एक कदम आगे बढ़कर करके उसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट जो किया है मानवता का काम, वो काम कथा ने ही किया है। ये हमारा फिक्शन का जो साहित्य है, चाहे वो गौतिक साहित्य हो या वैसा साहित्य हो, इसके बिना ये साहसिक कदम कोई नहीं ले सका। और अंत में मुझे बैठते बैठते एक हमारे एशिया के बहुत बड़े कथाकार अफसाना निगार हुए हैं इंतज़ार हुसैन साहब, पिछले दिनों ही उनकी स्वर्गवास हुआ था, पाकिस्तान से रहे। दुर्भाग्यवश मेरा ये तो आज कहते हैं हम पाकिस्तान, और वो हमारे बीच के ही थे। और हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी ने उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार प्रेमचंद फेलोशिप दी थी उनको। उनका एक कथन था अफसाना के बारे में, मैं उसको ही दोहरा देना चाहता हूँ इस लोक कथा और इस गौतिक साहित्य और ये फोकलोर और इन सब के संदर्भ में, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्म में अफसाने हैं। आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, अरेबियन नाइट्स पढ़ा किसी ने? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक शहरयार होता है और एक शहरजाद। शहरजाद उसको कहते हैं जो एक ऐसी राजकुमारी है, एक बादशाह की लड़की, जो ये कहती है कि एक चुनौती देती है कि मुझे कोई कहानी सुनाए तो मैं उसे इतना इनाम दूंगी कि वो माला माल हो जाएगा, लेकिन जो कहानी पूरी नहीं सुना पाएगा तो उसका सर काट लिया जाएगा। कई लोग जाते हैं और वहाँ एक नगाड़ा रखा है, उसके ऊपर ये कहते हैं, वो कहते हैं आने दो और उससे मैं विवाह करूंगी। देखिए बहुत सिंबॉलिक ढंग से कैसे साहित्य की कोई, मैं जब ये सोचता रहता हूँ और जो आनंद आता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं तो बखान भी नहीं कर सकता आपसे। वो ये, और मेरे ये आचार्य मेरे जो गुरु हैं विजयदान देथा, वो हमेशा एक अच्छी किताब पढ़ते वक्त कहते थे, मुझे रोज फोन होता था। पहले तो वो इन फोन और घड़ियों और इनके सब कैमरा फैमरा इन सब के बहुत खिलाफ थे, माइक फाइक, कभी इस तरह बोले ही नहीं हो। तो लेकिन बाद में जब ये मोबाइल आ गया तो उस पर फिदा हो गए, क्योंकि वो रोज मुझसे बात कर सकते थे। तो खैर बहरहाल वो शहरजाद जैसी चुनौती होती है, वो शहरयार जाता है कि कई मरना तो है ही है, वो जाता है वहाँ जाकर के नगाड़ा बजाता है, वो कहता है आ जाओ, वो कहता है कहानी शुरू कर। कहानी शुरू करता है, लेकिन वो जानता है कि तीसरे पहाड़ तक जाते जाते अफसाना खत्म हो जाता है। अफसाना खत्म होने का मतलब है उसका जीवन खत्म होना, उसकी मूर्ति कट जाएगी। नतीजन वो उस कहानी को खत्म नहीं होने देता और सवेरा हो जाता। वो फिर पूछती है बादशाह की लड़की, फिर क्या हुआ? उसने कहा आगे मत पूछो, दिन को कहानी नहीं कहते क्योंकि कोई आदमी राहगीर जो है वो रास्ता भूल जाता है। अगेन दूसरे दिन शुरू करता है और 6 महीने तक लगातार कहानी को समाप्त नहीं होने देता। अफसाना कभी खत्म नहीं होता। साहित्य इसी इन्हीं अर्थों में साहित्य कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा रक्त बीज है कि जहाँ रक्त की बूंद पड़कर के एक राक्षस पैदा हो जाता था। साहित्य का इतनी भी सुक्ति अगर बची रह गई, इस अफसाने की सुक्ति बची रह गई, तो वो फिर से जीवित हो जाएगी फिनिक्स की तरफ, अपने उस राख में से फिर उठ खड़ा होगा। और यही परित्राण है मनुष्यता का। और इसलिए इंतजार हुसैन अंत में कहते हैं, जब तक ये अफसाना है ये मनुष्यता की रक्षा करता रहेगा। जिस दिन अफसाना साहित्य खत्म हो गया, मनुष्यता नहीं बचेगी। धन्यवाद, आपने मुझे और इन विद्वानों को इतना प्यार से सुना, उसके लिए फिर से धन्यवाद। और आप सवेरे से सुन रहे हैं और आप नहीं थके, इसके लिए भी धन्यवाद। ये लोक कथा नहीं मानते, जिसकी और अफ्रीका के साथ में कंपैरिजन करते हुए प्रोफेसर माथुर ने इंगित किया कि ये और यहाँ पर कितनी साम्यता है। और उस साम्यता के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और निवेदन कर दूं कि अफ्रीकन साहित्य भी इस साहित्य को, इस तरह के साहित्य को
कोई गोथियक साहित्य नहीं कहती, वो किसी परिभाषा में नहीं बांधती है, और राजस्थानी भी नहीं बांधती है। जो सवेरे मैंने एक सवाल उठाया था कि मैं कैसे समझूं, राजस्थानी में ये परंपरा तो है लेकिन ये गोथियक परंपरा नहीं। उसके बाद कई एक सवाल आए, मैंने भी उदाहरण से आपको समझाया 5000 साल पहले से, क्योंकि 18वीं सदी में कोई यूरोप की धनियाप नहीं है। मेरे तो याद है रामायण में मैंने बता दिया नहीं कि रावण के 10 सिर हैं, तो अब आप ये गोथियक से इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है। तो इसलिए ये इनकी नेचुरल प्रवाह है, जिस तरह से कुदरत नेचुरली चलती है उसी तरह से लोक कथा भी, फोकलोर भी, उसमें कोई आर्टिफिशियल वो नहीं होता, कैटलिस्ट नहीं होता कि वो उसको प्रमोट कर दे और ऐसा कर दे। तब वो उसी कुदरतन प्राकृतिक ढंग से बैठी है, और इसीलिए वो पूरे की पूरी प्राकृतिक सत्य को, प्राकृतिक यथार्थ को, जिसको कि हम असल में यथार्थ कहते हैं, उसको पकड़ने की ताकत, बावजूद इसके कि मैं लेखक हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, सब कुछ तरह के लेखन में मैं घुसता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस यथार्थ को पकड़ना हो तो या चाहे उसका कोई नाम दे दे, मैजिकल रियलिज्म या और कुछ, लेकिन अगर उसको पकड़ना है यथार्थ को, तो पूरे फॉर्म में यथार्थ का हिस्सा तो आप पा सकते हैं दूसरा साहित्य पढ़कर, लेकिन पूरे यथार्थ को कंप्लीटली अगर आपको एब्जॉर्व करना है या उसको निकालना है, तो लोक कथा के साथ, लोक साहित्य या लोक वाङ्मय या लोक आख्यान, इनके बिना कोई दूसरा टोटका है ही नहीं श्रीमान। क्योंकि ये इतना नेचुरल तरीका है, जिस कुदरती ढंग से ये कहानियाँ बनती हैं, उतनी ही कुदरती ढंग से ये अपना अर्थ आपको व्याख्यायित करती हैं, और उसी कारण से ये कालजयी होती हैं और ये टाइम के भी पार जाती हैं। बातें बहुत है, इसके अलावा भी मैं आपसे ये तो विषय ही ऐसा है कि जिस पर ज़्यादा कोई चर्चाएं हुई नहीं, और मेरा राजस्थान का दुर्भाग्य यह है कि जो राजस्थानी जानता है उसे अंग्रेजी नहीं आती, और जिसे अंग्रेजी आती है उसे मेरी राजस्थानी नहीं आती। ये हम लोगों को, और कहाँ कहाँ से ये लोक कथा के जो बीज हैं, और जब हम पढ़ते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा। मैं सुधा जी ने जो अंत में बीजा तीजा जो दोड़ी जून नाम की विजयदान देथा की कहानी है जिसका हवाला किया, मैं एक बार महाभारत को पढ़ रहा था, पिछले दिनों मैंने महाभारत पे बहुत काम किया, तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे अम्बा, अम्बालिका और वो जो 3 बहनें हैं उनका आपको किस्सा पता लगा होगा, उसमें इस कथा के बीच छुपे। ये जो स्त्री है जिसको वो सेठ जो है वो अपनी कंजूसी के कारण कहता कि नहीं मेरे तो लड़का पैदा हुआ, क्योंकि लड़की होगी तो खर्च करना पड़ेगा, शादी करेंगे दहेज देना पड़ेगा, इसलिए वो सेठ कहता है नहीं नहीं मेरे तो यही है, उसको उसी तरह पालता है, उसी तरह रखता है, वही सब कुछ। लेकिन विजयदान देता उसमें से एक नया तत्व कैसे इमर्ज करते हैं, उसमें से बरामद करते हैं, ये देखने की चीज है। असल में वो इस कथा को, ये लेस्बियन स्टोरी हो सकती थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन वो उसको लेस्बियन कहानी से बिल्कुल बचा ले जाते हैं, और हैमर की तरह, हथौड़े की तरह पितृसत्तात्मक अवधारणा के ऊपर प्रहार करते हैं, उसे चूर चूर कर देते हैं। क्योंकि मैरिज इंस्टीट्यूशन पितृसत्तात्मक समाज का या पितृसत्तात्मक इसका सत्ता का उपकरण है। मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं हो तो स्त्री 2म दर्जे पर कैसे जा सकती है। तो ये जो उपकरण हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के, स्त्री को कमजोर बनाने के लिए, तो उस पर चोट करते हैं और एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ विवाह करवा देते हैं, और अंत में ये सिद्ध कर देते हैं कि वो उनकी ये जो दंपत्ति है ये कोई हेट्रो या कोई बहुत गलत दंपत्ति नहीं है, बल्कि वो तो ये सिद्ध कर देते हैं कि ये असल में एसेंशियल, ये जो ट्रू फ्रेंडशिप हो सकती है वो इसी फॉर्म में हो सकती है। हालांकि ये यहाँ पर वो अति कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहानी कह रहे हैं, उन्हें कोई ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से दुविधा में भी पितृसत्तात्मक समाज पर यह प्रहार है, समझने की दरकार है कि ये कथा में कहना क्या चाहते हैं। एक शादीशुदा है, दुल्हन को लेके आ रहा है,
और एक खेजड़ी के नीचे रह रहा, ऊपर भूत है, वो उस पर रीझ रहा है और कहानी कुछ की कुछ हो गई। तो इसका मान ही क्या है? अल्टीमेटली जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, इट इज नल एंड वॉइड, ये कोई मतलब ही नहीं रखती है उस दुविधा की नायिका के मन में। और यही बात वो सामाजिक औचित्य के रूप में, जो कि आज का विषय है हमारा, तो वो सिद्ध करते हैं कि ये जो सामाजिक औचित्य है, ये मैरिज इंस्टीट्यूशन, ये सत्ता और पूंजी का उपकरण। इस तरह से अगर हम इन कथाओं को और इस साहित्य को समझने की चेष्टा करेंगे, कभी हमारे साथ इतना आसान नहीं है पकड़ में आना। आसमान जोगी का, उस कुमारी का जो भ्रम है, वो भ्रम जो है उसका टूटना बहुत बहुत मुश्किल है। और क्योंकि लोक साहित्य में या लोक कथा में जो बात जितनी सरल होती है, उसे समझना उतना ही कठिन और उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमारा मस्तिष्क उसके अंदर और घुसेड़ देते हैं जिसकी की जरूरत नहीं है। कहानी और उसके बीच में, कान के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये जो गौथिक साहित्य जिस विषय को लेकर के हमने आज ये संपोजन किया, उसकी सार्थकता इसी में है कि हम, ठीक है, ये बात मैंने भी अपनी बात शुरू की जब ये कहा कि ये 18वीं सदी में ये सब कुछ सिलसिला शुरू हुआ, और ये जो छोगा है ये अंग्रेजी राइटिंग के साफे में ये तुर्रा उनको लगना था, इसलिए हम उसे गौथिक, इसीलिए मैं इतना कह रहा हूँ नहीं गौथिक। मैं कोर्स देखा इसका अपने फादर कामिल बुल के, वो लिखता है गौथिक की जगह आगे लिखता है गाथिक साहित्य, गौथिक का गाथिक कर दिया। तो अब इसको समझना भी हमारे लिए नहीं है, और इसीलिए मैंने अपनी कम बुद्धि से भी सवेरे आपसे ये कहा कि ये अलौकिक कहानियां हैं हर अर्थों में। अलौकिक का मतलब उस दो लोगों के बीच की दूरी नहीं है, ये कई अर्थों में अलौकिक हैं, ये नायाब हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से प्राकृतिक हैं और उसमें कोई भेड़ नहीं है, कोई मनुष्य की बुद्धि का भेड़ नहीं है। और ये सब कुछ जो प्रयोजन किया गया है, इनकी रचनाओं का प्रयोजन, जैसा कि मैंने सवेरे कहा, मनुष्यता को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने का अगर कोई काम साहित्य की दृष्टि से हुआ है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हुआ है, और आगे साहित्य में एक कदम आगे बढ़कर करके उसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट जो किया है मानवता का काम, वो काम कथा ने ही किया है। ये हमारा फिक्शन का जो साहित्य है, चाहे वो गौथिक साहित्य हो या वैसा साहित्य हो, इसके बिना ये साहसिक कदम कोई नहीं ले सका। और अंत में मुझे बैठते बैठते एक हमारे एशिया के बहुत बड़े कथाकार अफसाना निगार हुए हैं इंतज़ार हुसैन साहब, पिछले दिनों ही उनकी स्वर्गवास हुआ था, पाकिस्तान से रहे। दुर्भाग्यवश मेरा ये तो आज कहते हैं हम पाकिस्तान, और वो हमारे बीच के ही थे, और हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी ने उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार प्रेमचंद फेलोशिप दी थी उनको। उनका एक कथन था अफसाना के बारे में, मैं उसको ही दोहरा देना चाहता हूँ इस लोक कथा और इस गौथिक साहित्य और ये फोकलोर और इन सब के संदर्भ में, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्म में अफसाने हैं। आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, अरेबियन नाइट्स पढ़ा किसी ने? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक शहरयार होता है और एक शहरजाद। शहरजाद उसको कहते हैं जो एक ऐसी राजकुमारी है, एक बादशाह की लड़की, जो ये कहती है कि एक चुनौती देती है कि मुझे कोई कहानी सुनाए तो मैं उसे इतना इनाम दूंगी कि वो माला माल हो जाएगा, लेकिन जो कहानी पूरी नहीं सुना पाएगा तो उसका सर काट लिया जाएगा। कई लोग जाते हैं और वहाँ एक नगाड़ा रखा है, उसके ऊपर ये कहते हैं, वो कहते हैं आने दो और उससे मैं विवाह करूंगी। देखिए बहुत सिंबॉलिक ढंग से कैसे साहित्य की कोई, मैं जब ये सोचता रहता हूँ और जो आनंद आता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं तो बखान भी नहीं कर सकता आपसे। वो ये, और मेरे ये आचार्य मेरे जो गुरु हैं विजयानंद था, वो हमेशा एक अच्छी किताब पढ़ते वक्त कहते थे, मुझे रोज फोन होता था। पहले तो वो इन फोन और घड़ियों और इनके सब कैमरा फैमरा इन सब के बहुत खिलाफ थे, माइक फाइक कभी इस तरह बोले ही नहीं हो। तो लेकिन बाद में जब ये मोबाइल आ गया तो उस पर फिदा हो गए, क्योंकि वो रोज मुझसे बात कर सकते थे। तो खैर बहरहाल वो शहजाद
कैसी चुनौती होती है। वो शहरियार जाता है कि कई मरना तो है ही है, वो जाता है वहाँ जा कर के नगाड़ा बजाता है, वो कहता है आ जाओ, वो कहता है कहानी शुरू कर। कहानी शुरू करता है, लेकिन वो जानता है कि तीसरे पहाड़ तक जाते जाते अफसाना खत्म हो जाता है। अफसाना खत्म होने का मतलब है उसका जीवन खत्म होना, उसकी मूंड की कट जाएगी। नतीजन वो उस कहानी को खत्म नहीं होने देता और सवेरा हो जाता। वो फिर पूछती है बादशाह की लड़की, फिर क्या हुआ? उसने कहा आगे मत पूछो, दिन को कहानी नहीं कहते क्योंकि कोई आदमी राहगीर जो है वो रास्ता भूल जाता है। अगेन दूसरे दिन शुरू करता है और 6 महीने तक लगातार कहानी को समाप्त नहीं होने देता। अफसाना कभी खत्म नहीं होता। साहित्य इसी इन्हीं अर्थों में साहित्य कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा रक्त बीज है कि जहाँ रक्त की बूंद पड़कर के एक राक्षस पैदा हो जाता था। साहित्य का इतनी भी सुक्ति अगर बची रह गई, इस अफसाने की सुक्ति बची रह गई, तो वो फिर से जीवित हो जाएगी फिनिक्स की तरफ, अपने उस राख में से